Hi Tamanna, good evening. So let's wait for some other people to join us as well. Hello Anju ma'am, how are you? Good evening. Thank you for joining us, ma'am. Can you hear me? Same here, ma'am. Very nice to see you. Hope you can hear me well. Great. So, shall we start? Hi Jaswinda, how are you doing? So let me give you a brief introduction. Hi Timsy, thank you for joining us. So thank you so much all for taking out your time and joining us. And let me give you a brief introduction about myself. This is Poonam Duneja. Hi Jaswinder. Yeah, this is Poonam Duneja, and I am the director of Nutrifiber Poonam Diet and Wellness Clinic. And I am also a Commonwealth athlete. I am a TV presenter as well, and I have won various awards. And I am an educator also. I am teaching fitness professionals in Fit India Trust Academy as a senior faculty, and I am teaching them American Council on Exercise certifications, and I am also a pageant coach. So I am also the daily convener of Global Peace Foundation, recently appointed. So I really want to touch a very important topic in our women's lives. So I want you that how you can relate to my journey when I first started. Like it's with everyone. We have pregnancies, we come to new houses, we have all set of problems. सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वी हैव ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेसेस. ऐसा नहीं हो सकता नो वुमेन इन द लाइफ. There cannot be any woman in the life that has not faced any kind of serious challenges in life, whether she's a homemaker, whether she's a professional, or any kind, it can be entrepreneur, anything. But we have come across so many challenges in life, and our body bear those marks with pride. I hope you can relate. We have stretch marks on our bodies, we have loose skins on our body, and we are very proud of that because our children are our pride, right? So हमने इतना उन लोग को बड़ा करने में इतनी ज़्यादा मुसीबतें भी झेली हैं. कोई भी ऐसी विमेन नहीं है जिसको बहुत स्मूथ गोइंग हो आफ्टर देयर मैरिज. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है. और समटाइम्स स्ट्रेस टेक्स लॉट ऑफ टॉल ऑन आवर हेल्थ एज वेल. और मैं यही चाहूँगी कि आज मुझे इस टाइम जो लोग देख रहे हैं, जो विमेन देख रहे हैं, स्पेशली आई वांट टू थैंक अंजू मैम. शी इज़ द फाउंडर ऑफ शी कनेक्ट, एंड आई लव हर सो मच दैट शी हैज़ क्रिएटेड दिस she connects. I want to call it as a family, not just an organization. She has created such a niche for all the women that everyone puts their heart out. I want everyone listening to me to put their heart out. कि जो आपके मन में भरा हुआ है, I want कि आप spill out करो. Because हमारे अंदर इतना स्ट्रेस भरा हुआ है, हमारी बॉडीज के अंदर इतना स्ट्रेस भरा है कि अगर हमने उसको बाहर नहीं निकाला तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल सिम्टम्स बन के आगे जाके नजर आएगा. और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम लोग सबको ध्यान करते हैं. आवर फैमिलीज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस. यस, आवर फैमिलीज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस. और हम लोग अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना तो हम लोग किसी का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे. एंड इट्स हैपनिंग क्योंकि हम लोग भी थिंक कि नहीं, पहले बच्चे, पहले इन लॉज, पहले हस्बैंड, पहले मैं उनका काम कर लूँ फिर मैं अपना ध्यान करूँगी. मगर ये रॉन्ग है. What I want to put this, I want to bring this into notice that you are special too.
आप लोग को अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी, इट्स हाईली इम्पॉर्टेंट। और आपको अपना ध्यान करना इतना ज़रूरी है कि सी यू कांट स्पिल द कप ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आपका खुद का कप खाली है, आप बिल्कुल भी किसी और को खुशी कैसे दे पाओगे जब आप अंदर से ही फ्रस्ट्रेटेड हो? ठीक है, इट कैन बी रिगार्डिंग टू सो मेनी इश्यूज इन आवर लाइफ। इट कैन बी रिलेटेड टू आवर पर्सनल बॉडी इमेज। हम जब भी मिरर में देखेंगे, यू मस्ट हैव नोटिस कि आप अपने बेली फैट को पिंच करके देखते हो कि मेरी आर्म्स देखो, मेरा मुंह देखो। आई गेस सब लोग इस चीज को जरूर रिलेट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो भी इस टाइम बोलेगा कि नो आई एम परफेक्ट, दैट पर्सन इज लाइंग। आई कैन से दैट विद 100%। आप जब भी अपने आप को सिर्फ मिरर में देखते हो, तब भी आप अपने आप को ये सोचते हो कि आई एम नॉट परफेक्ट। मगर वाई? क्यों? आप एज अ वुमेन, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड द गॉड हैज क्रिएटेड। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी इमेज एज वेल। हम लोग अपने आप को इतना स्ट्रेस महसूस करते हैं ऑल द टाइम, मगर यू नो व्हाट, जो स्ट्रेस है ये हमारी बॉडी ने एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए गॉड ने क्रिएट किया था कि सपोज हमारे सामने कोई इमरजेंसी आती है, हम उस टाइम उस इमरजेंसी को कोप अप करके वी कैन टेक एन एक्शन। बट वॉट हैपन्स इज, हमारी लाइफ में अब कोई वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं है, वी आर नॉट अर्ली मैन, राइट? तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, हम छोटे छोटे इश्यूज को ना दिल में रख लेते हैं, वी आर नॉट सॉर्टिंग आउट देम। और सॉर्ट आउट हम करते नहीं है। छोटी सी बात, इसने वो बोल दिया, मुझे मदर इन लॉ ने ये बोल दिया, आई एम सॉरी, सो मेनी मदर इन लॉज माइट बी वॉचिंग मी, बट दिस इज अ ट्रुथ कि अपनी लाइफ में शायद उन्होंने अपनी इन लॉज की बात कोई दिमाग में रखी, किसी रिश्तेदार ने, किसी रिलेटिव ने ये बोल दिया, माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड पुट मी डाउन, एनीथिंग। इट कैन बी योर चिल्ड्रन, इट कैन बी योर इन लॉज, इट कैन बी योर हस्बैंड इवन। और you should not hold anyone else apart from you, else then you're responsible for your own happiness. Why do you want that person to come and make you happy? This is never possible. आप कभी भी किसी और से उम्मीद नहीं रख सकते हो कि आओ और मुझे खुश करो, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने हमारे को, इट्स ऑलरेडी हाई टाइम कि हमें अपना ख्याल खुद रखना आना चाहिए, राइट? जब हम अपना ख्याल खुद रखना मतलब हम लोग को जब खुद अपना ख्याल रखना आ जाएगा, तो हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। विल टेक केयर ऑफ आवर ओन लाइफ, विल टेक केयर ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस, विल डू स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कीप आवरसेल्व्स हैप्पी। आप शायद अपनी मैरिज से पहले कुछ हॉबीज आपको पसंद होती होंगी, मगर आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते वो हॉबीज कभी उनको परस्यू नहीं कर पाए। बट आप ये सोचते हो नहीं, पहले घर, शायद आपके जो आउटसाइड का सिस्टम है, मैटरनल पैट्रियार्कल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो लोग भी यही कहते हैं कि हाउस फर्स्ट, होम फर्स्ट, चिल्ड्रन फर्स्ट, हबी फर्स्ट। ओके, आई अग्री कि ज़रूरी है, हम लोग को सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, वी कैन नॉट इग्नोर एनी वन ऑफ देम, ठीक है, अग्रीड। बट वाई डू इग्नोर योर सेल्फ? यू नो वॉट, ये सब इकट्ठा होकर के एक एक साल का मैं बता रही हूँ, मे बी यू आर 40+, मे बी यू आर 30+, वेन यू हैव दीज इशूज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, दे स्टार्ट, या एक्सपेक्टेशंस कॉज डिसअपॉइंटमेंट। एग्जैक्टली अंजू मैम, आप पहले एक्सपेक्ट करना बंद करो, और जब ये इशूज जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 जब ये पाइलअप होती है, देन दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोनल इशू, राइट? क्या होता है, स्टार्टिंग ऐसी होती है, प्रेगनेंसी पहले तो कई बार कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तब उस चीज़ का स्ट्रेस आप लोगों को, सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, बेबी नहीं हो रहा, किसी भी वजह से XYZ प्रॉब्लम से, इट कैन बी योर फॉल्ट, आई मीन मेडिकल फॉल्ट आप में हो सकता है या आपके हस्बैंड में, जो भी है। तो उसके अलावा भी आप में सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस हैं, 30 से बिलो एज में हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी आप क्या करते हो, ये स्ट्रेस से आपको कंसीव करने में, अगेन इट इज गोइंग टू इट्स द बॉडी इज नॉट अ मशीन, इट डिपेंड्स ऑन हॉर्मोन्स, whether you are happy, whether you are sad, whether you are feeling anxious, जो भी आप में इस टाइप का इमोशन है, that is due to some hormone. When you feel happy, when you are satisfied, आपने कभी नोटिस करा होगा, if I guess all of you are working out, अगर ये लॉकडाउन के पीरियड के बगैर, वैसे पहले भी अगर आप वर्कआउट करते हो तो यू फील सो हैप्पी,
your hormones are happy, you are so satisfied. When you hug your kid, right, again you are so satisfied, you are so happy. जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा इवेंट होता है, यू आर हैप्पी. मगर जब भी कुछ बुरा होता है, देन यू आर सो एंजाइटी, यू फील सो एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन. ये क्या है? ये हॉर्मोन्स है. और ये पाइल अप कर, कई लोग होते हैं बोल देते हैं मुंह से, और कई लोग होते हैं चुप करके मन में रखते हैं कि नहीं, या हिम्मत नहीं होती नो बोलने की. सी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मेडल्स व्हेन यू आर अवेलेबल 24/7 फॉर एवरीवन. आप सिर्फ अपनी हेल्थ खराब करोगे. आई एम सॉरी अगर मे बी देर आर सम पीपल हु विल नॉट एग्री विद मी, बट at this point of time it is high time that we should understand that it is important to say no also sometimes. क्या होता है? I'll tell you why stress is so dangerous for our body. अगर आपने शाम को कहीं तैयार होने के लिए सुबह से ये सोचना शुरू करा कि मुझे शाम को ड्रेस क्या पहननी है, राइट, सिर्फ ड्रेस पहनने की, क्या कलर, कौन सी साड़ी या कौन सा सूट, सिर्फ इतने से छोटे से इशू से भी कैन यू इमेजिन कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना हाई है. सिर्फ एक ड्रेस को चूज करने का भी इट इज क्रिएटेड अ हैवक ऑन योर बॉडी. व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट कि किस तरह का स्ट्रेस है, कि उसको सिर्फ ड्रेस की है, या मीटिंग है, या आपको कोई टारगेट पूरा करना है, या किसी तरह का भी स्ट्रेस हो सकता है. बॉडी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. बॉडी सिर्फ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी, दो हार्मोन्स, एक कॉर्टिसोल और एक एड्रीनलिन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, जो फाइट और फ्लाइट बॉडी को रिस्पॉन्स करते हैं. तो ये आपके ऊपर, अगर आप रात को सो रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपके एसी का जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेड लाइट भी अगर आपकी आंखों में चुभेगी, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. कैन यू इमेजिन दैट? और आप ये सोचो कि आपके हाथ में हर समय फोन है, लोग आते हैं मेरे पास, इवन आई हैव विटनेस्ड इन माई पर्सनल जर्नी ऑल्सो, होती है, स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, अपने घर में इश्यूज होते हैं, अपने बच्चों के साथ इश्यूज होते हैं, और आपकी फैमिली में इन लॉज के साथ भी इश्यू होते हैं, अपने हस्बैंड के साथ भी इश्यू होते हैं. कि मगर आपको ये समझ आनी चाहिए कि आप अपनी हेल्थ नहीं खराब करोगे इसके पीछे. अगर आपके ये रिलीज होने लग गए स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और आपका जो एड्रीनलिन है, इट विल क्रिएट अ हैवॉक ऑन योर पीरियड्स. आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हुए, बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स या बहुत फ्रीक्वेंट आपके पीरियड्स होने लगे, देन यू गो टू द डॉक्टर. व्हाट शी डज इज शी गिव्स यू पिल्स. अंडरस्टैंड दैट, शी गिव्स यू पिल्स. व्हाट यू डिड वाज यू आर ट्राइंग टू पुट अ बैंडेज ऑन योर वुंड. आपने रूट लेवल पे जाके उस इशू को सॉल्व नहीं करा, मगर यू फाउंड अ शॉर्टकट विच योर डॉक्टर गेव, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स. उन्होंने एक आपको पिल दी, आपने उस पिल को लेना शुरू करा. फिर क्या होता है आपका, मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको आपकी जो पीरियड्स किस तरीके से होते हैं. जब देयर आर 3 phases ऑफ अ पीरियड, राइट. फर्स्ट इज अ फॉलिकुलर फेज, जब बहुत सारे फॉलिकल्स जो है ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. देयर आर 2 hormones, FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. उन दोनों का लेवल बहुत हाई होता है, राइट. देन सेकंड इज द ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज में जो एग है, ओवम, दैट इज रिलीज्ड, राइट. और उस टाइम आपका जो है प्रोजेस्ट्रॉन लेवल हाई हो जाता है, राइट. और ये 14 to 21 डेज के बीच में आपको भी पता है ओव्यूलेशन पीरियड होता है. देन एट दैट टाइम इफ यू गेट प्रेग्नेंट, then periods will stop, right, periods will not happen. फिर थर्ड फेज जो है ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज में होता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन लेवल जो है वो बहुत डाउन चला जाता है, और उसकी वजह से आपके पीरियड स्टार्ट हो जाता है. एज सिंपल एज दैट. बट जब आपको पिल वो दी जाती है, पिल इज अ सिंथेटिक मिक्सचर ऑफ वेरी हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, राइट. आपकी बॉडी अपने आप से ये दोनों हार्मोन्स बनाना क्यों करेगी जब उसको आउटसाइड सोर्स से ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन इतनी हाई अमाउंट्स में मिल रहे हैं. आप ये बताओ. दे आर नेवर द क्योर. पिल्स आर नेवर द क्योर. एंड इफ यू थिंक पिल्स हैव नो साइड इफेक्ट्स, अगेन सिस्टर यू आर रॉन्ग. व्हाई? क्योंकि पीरियड्स, ये जो पिल्स हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. वेट गेन इज वन ऑफ देम, एंग्जाइटी डिप्रेशन इज वन ऑफ देम, यू हैव स्टेनिंग, यू हैव क्लॉटिंग, राइट. और आपको जो है नोजिया सा भी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. सो आई वांट, आपने कभी भी देखा होगा अगर आपको इस तरह की कभी भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहने लग जाता है, व्हाई आर यू गोइंग टू अ डॉक्टर जस्ट फॉर अ पिल? व्हाई कांट यू जस्ट मेंटेन योर स्ट्रेस लेवल्स? अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच करना ज़रूरी है. आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो. ट्राई टू परस्यू योर
हॉबी, क्योंकि किसी को कई बार फॉरगिव करने में भी हो सकता है दैट पर्सन इज रॉन्ग, बट समटाइम्स यू हैव टू गिव फॉरगिवनेस टू पीपल हु हैव नेवर आस्क्ड फॉर सॉरी. It is for your own peace of mind. This is very important. Try to understand, dear sisters. क्यों ज़रूरी है अपने आप को पीसफुल रखना? क्योंकि आपकी अपनी बॉडी खराब हो रही है, किसी का कुछ भी नहीं जाता है, राइट? तो आपके अपने हार्मोन्स खराब हुए, आपकी अपनी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आई, राइट? और फिर उसके बाद थायराइड आता है, थायराइड हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम आती है. अगर थायराइड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया या बहुत स्लो हो गया, आपको पता है वेट गेन हो जाएगा या वेट लॉस भी, मतलब वो अच्छे वाला वेट लॉस नहीं होता है. वेट लॉस आर ऑफ टू टाइप्स. एक तो हार्मोनल, जो ये वाला हाइपर एक्टिव थायराइड हुआ है, अगर उसकी वजह से आपको वेट लॉस हो रहा है तो क्या होगा, आपके अंदर शिवरिंग सी होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाएगी, यू आर नॉट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एट ऑल, और आपका जो बॉडी है इतनी ताकत नहीं होगी कि मैं आधा घंटा किचन में जाके खड़ी हो जाऊं. दैट इज नॉट गोइंग टू मेक यू $1,000,000 स्माइल. यू विल नॉट लुक गुड एट ऑल, यू विल लुक वेरी थिन एंड सिक. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना ध्यान करना है, अपने थायराइड हार्मोन्स को भी बैलेंस करके चलना है, और पिल्स के ऊपर कभी रिलाई नहीं करना. तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम मेरा जो थायरॉक्सिन जो है T3 T4 ये खराब आया है, इवन 5 आया है, इवन 6 आया है, तो इसमें भी लोग पिल्स शुरू कर देते हैं. अगेन दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जो है थायराइड हार्मोन्स कैन बी इजीली बैलेंस वंस यू स्टार्ट हैविंग अ गुड डाइट विद यू, राइट? और ये सब चीज़ें डाइट से ही शुरू होती हैं. आप लोग टाइम से नहीं सोते, राइट? स्ट्रेस आया, मेरे दिमाग में बात घूमती चली जा रही है, होता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोग के साथ भी ज़रूर होता होगा. आप रात को सोते हो, दिमाग में घूमे जा रही बात, क्योंकि आपने सॉर्ट आउट नहीं करी है उस चीज़ को. रात को 2 बजे नींद आ रही है, 2:30 बजे नींद आ रही है, देन अगेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, हाईली फैटिक, जैसे जानी नहीं है, राइट? I'll answer, Rudra ji, thank you for joining us. I'll definitely answer your questions in the end. And PCOD, again, I want to suggest that for PCOD, don't have those dairy products की diet आपने नहीं लेनी है. There are so many things that are triggering your PCOD. I'll come to that, right? Then आपके thyroid hormones manage करने बहुत ज़रूरी हैं, right? और यही metabolism, यही hormones ही metabolism को जो है क्या कहते हैं मैनेज करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम आप लोग को अपना ध्यान करना. रात को आप देर से सोए, सुबह टाइम से उठे नहीं. अच्छा, फिर आपने सुबह अगर सपोज 5 बजे उठे, आप सोचते हो कि पहले मैं बच्चों को भेज दूं, फिर ऑफिस पहले उनका नाश्ता बना दूं, फिर टिफिन बना दूं, राइट? और फिर आप लास्ट में 12 साढ़े 12 यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट. कैन यू रिलेट टू दिस? डोंट यू थिंक दैट यू आर बीइंग सो ट्रोमैटिक? आप अपनी बॉडी के साथ कितने क्रूएल्टी कर रहे हो. And I really want you to understand that having a balanced diet is not an option for you. It should be a crucial step for you. आपको जब अगर अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बात बात पे गुस्सा आ रहा है, कभी उसके साथ, कभी ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं अपने बच्चों को मन करता कि पीट दूँ, ज़रा से शोर मचाया कि लगता है कि मैं चुप करा दूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना लगता है. येस, आयरन डेफिशिएंसी इज ऑल्सो देयर. येस, आई विल कम टू दैट. और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ओवर थिंकिंग होना, कुछ खाने का मन ना करना. येस, योर लिबिडो ऑल्सो गोज डाउन, राइट? और आपने पिल और खा ली ऊपर से, और उसके साथ आपने बच्चों के साथ भी, मतलब यू आर नॉट पीसफुल इनसाइड. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी पीसफुल विद पीपल अराउंड यू? इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल वंस यू आर नॉट पीसफुल. सी, आपने लोगों को प्रायोरिटी बना करके, इवन इफ इट्स योर फैमिली, आपने लोगों को प्रायोरिटी बना करके अपनी लाइफ खराब कर ली है. और आप सोचो, स्ट्रेस बढ़ गया, स्ट्रेस की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हैं, एंड इट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड. पहले आपके पीरियड्स खराब होते हैं, फिर उसके साथ आपका थायराइड खराब हो गया, आपके जो स्ट्रेस से रिलेटेड आपके डायबिटीज़, शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए, फिर डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं. यू नो, दिस इज़ अ चेन, दिस इज़ अ चेन. आप कई मेरे पास आती हैं लेडीज़ जो है कि मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आई एम जस्ट 30, आई एम जस्ट 35. मतलब दिस इज नॉट द एज. यू शुड बी enjoying योर लाइफ एट दिस स्टेज. और उल्टा हो रहा है आपके साथ, और आप बाहर जाते हो, आप थोड़ा सा कदम चलते हो, नाउ यू आर फ्री, चलो बच्चे स्कूल चले गए, अब मैं जरा मार्केट घूम के आती हूँ, मगर आपने जानी नहीं है. आप कुछ खा के, या आपने सोचा चलो चाय के साथ मैं रस ले लेती हूँ, राइट? अगेन दिस इज, डू यू थिंक दैट दिस इज अ गुड आइडियल मील ऑप्शन फॉर यू? Some people even start their days with a tea or coffee. Again, this is wrong.
दे कैन बी सो मैनी बहुत ज़रूरी है। आप सोचो, अच्छा ये चीज़ भी होती है कि वी सी सम पीपल फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डाइट विद अ नेम, से कीटो डाइट है, पीलियो डाइट है और मेडिटेरेनियन डाइट है, सो मेनी थिंग्स। वो सोचते हैं कि इस डाइट के पहले ये अगर नाम लिखा हुआ है तो दिस मस्ट बी वंडरफुल फॉर मी। अगेन दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जिस डाइट के पीछे एक नाम लिखा हुआ है, दैट डाइट इज नॉट मेंट फॉर यू, स्पेशली व्हेन यू आर सर्चिंग आउट ऑन द इंटरनेट। प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी कभी भी किसी से डाइट लो, दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू गिव यू अ कस्टमाइज्ड डाइट, नॉट कि वो भी इंटरनेट से सर्च करके आपको डाइट दे रहा है, राइट? और आपने अपने हिसाब की, ये नहीं कि आपकी फ्रेंड ने पर्टिकुलर डाइट से इतने XYZ केजीज उसने लूज करा तो आप सोचो कि वो डाइट मैं फॉलो कर लूँ और मुझे भी फर्क आ जाएगा। अगेन दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो थर्ड पर्सन ने करा है। उसका हार्मोनल प्रोफाइल कुछ और है, उसके स्ट्रेस लेवल्स कुछ और है, उसकी एक्टिविटी लेवल्स कुछ और है, उसका फ्रेमवर्क कुछ और है, राइट? तो जरूरी नहीं है अगर उसको वो चीज सूट कर रही है वो आपको भी सूट करिए। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन डियर। आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है। आपको एक अच्छे डाइटिशियन के पास जाना है। आपने अपने बारे में ध्यान करना है कि आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे कंप्लीट हों। और खासकर मैं वीगन्स के लिए मैं बात करना चाहूँगी। आजकल लोग बहुत पीपल आर गोइंग फॉर वीगन लाइफस्टाइल, दे आर लिविंग एवरी डेयरी प्रोडक्ट एंड ऑल। और मैं चाहूँगी कि वीगन्स जो है स्पेशली खासकर दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। एक तो उनके आयरन लेवल्स और एक विटामिन B12 के लेवल्स पूरे अच्छे होने चाहिए। विटामिन B12 के 530 माइक्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। एंड जो आपका आयरन है यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 18 मिलीग्राम, राइट? और अगर किसी के टेस्ट अगर 50 से बिलो आते हैं देन वी गो फॉर सप्लीमेंटेशन एज वेल। क्योंकि जब भी आपके एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन होते हैं तब ये चीज़ों का बहुत मैटर करता है कि आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि जब भी हम एज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले अपना न्यूट्रिएंट स्टोर बॉडी में बहुत अच्छा चाहिए इफ यू वांट टू हैव अ वेरी स्मूथ मेनोपॉज। जरूरी नहीं है कि कई लोगों के ना दिमाग में बैठा होता है अब तो हमारी एज बढ़ गई है, अब तो हमारे साथ ये होना ही है। नो, एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर। आपको सिर्फ अपने आप को, अगर आपने शुरू से अपना ध्यान रखा है, यू हैव वर्कड आउट वेरी वेल, यू हैव डिवोटेड सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू यू, यू विल एज वेरी ग्रेसफुली। जरूरी नहीं है सबके साथ पीरियड्स में प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग मीनोपॉज और एंजाइटी स्ट्रेस। इट इज अगेन नॉट अ कॉमन थिंग। इट इज योर बॉडी टेलिंग यू SOS सिग्नल्स कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी इनसाइड। आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन है, आपके नेल्स चिप कर रहे हैं, अगेन दिस इज योर बॉडी टेलिंग यू डू समथिंग अबाउट मी। बॉडी आपके नेल्स चिप हो रहे हैं, आपकी जो ये फ्रेकल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कॉम्प्लेक्शन बहुत डाउन हो गया, हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी हो रही है। व्हाट डू यू थिंक? मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इज दिस नॉर्मल? नो। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज आपने एक अंडा बॉईल करा है, एग को बॉईल करा है, इट बिकम्स हार्ड, राइट? सेम बॉइलिंग वाटर है। और आपने एक पोटैटो को बॉईल करा है, इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों का एक जैसा ही नेचर है, पानी बॉइलिंग दोनों के लिए बराबर है, मगर दोनों ने अलग तरीके से रिएक्ट करा है। समटाइम्स अगर आप अपना ध्यान रखोगे ना, इफ योर बॉडी इज सपोर्टिंग यू वेल, अगर आपने प्रॉपर अपना ध्यान करा है, विटामिन B लिया है, दीज आर मूड बूस्टिंग विटामिन्स। और कुछ विटामिन्स का काम होता है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, कुछ विटामिन्स का काम होता है कि हम मूड पैटर्न को बहुत बराबर रखें, नींद अच्छी आना, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं, बड़ा काम, लड़ते रहो, जो लड़ना है लड़ते रहो, मगर आई एम वेरी काम, आई एम वेरी हैप्पी, हमें असर नहीं होता। दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी इनसाइड आउट। आपके कैल्शियम लेवल्स अच्छे हैं, सब कुछ है, आपकी क्यों बॉडी में पेन होगा? अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक तो आपके आयरन और विटामिन B12 अच्छे होने चाहिए। सेकंड इज आपका जो प्रोटीन लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं वीगन्स जो होते हैं वो लोग दालें लेना बहुत शुरू कर देते हैं कि मुझे प्रोटीन मिल रहा है, मैं दालें लेना शुरू कर दूंगी। तो दालें लेने से क्या होता है, कई बार कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि जिससे आपको लगता है कि ब्लोटिंग हो रही है। नॉट एवरीबडी स्टमक इज सूटेड फॉर लेंटिल्स, सो प्लीज डोंट पुश योरसेल्फ इनटू हैविंग द लेंटिल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटीन्स। जब भी आपको प्रोटीन्स की कमी हो, एक तो आपने कोलेजन लेना शुरू करना है,
ठीक है। कोलेजन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट अ वेरी गुड स्किन। इलास्टिन जो होता है उसका जो स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी रहती है। या एंड यू शुड हैव अ गुड, एक तो आपका कोलेजन लेना है और आपने लेक्टिन फ्री प्रोटीन सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात आई वांट टू ब्रिंग दिस टू नोटिस कि लोग बहुत सोचते हैं कि नहीं मुझे प्रोटीन इज एन आर्टिफिशियल सप्लीमेंट और मैं दालों से या पनीर से मैं ले लूँगी, और ऐसे नहीं होता है। देखो आपका जो बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट के हिसाब से आपके डेली एक्टिविटी के लेवल से जितना प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, सो दैट योर ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, आपका हेयर स्किन बहुत अच्छे से ग्रो करे और आपकी मसल्स मेंटेन रहें, आपका बॉडी में एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट और दैट कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर टेकिंग सम गुड प्रोटीन सप्लीमेंट। अगर आप सिर्फ दालों पे निर्भर रहोगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाई? आई विल टेल यू। सपोज आपने अपने घर में 100 ग्राम्स दाल बनाई, ठीक है, आपने 25-25 ग्राम सब में दी, एक एक कटोरी सबके हिस्से में आई, और आपने क्या करा, उस एक कटोरी में 2 ग्राम प्रोटीन है। 25 ग्राम्स की अगर बाउल है उसमें 2 ग्राम प्रोटीन है। आपने दिन में कोई 5-7-10 कटोरी तो दाल खानी नहीं है। यू अग्री विद मी, राइट? तो जब आपने दाल इतनी सारी नहीं खानी तो आपका बॉडी का प्रोटीन कैसे होगा? कभी भी पूरा नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज योर बटर मिल्क और कर्ड, दैट इज अगेन गुड। मगर कई लोग जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनका जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन है पर डे कैसे पूरा होगा? दैट इज वाई आपका प्रोटीन सप्लीमेंट्स दे आर नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, दे आर अ बिग नेसेसिटी फॉर वीगन। क्योंकि हमारी जो डाइट्स होती है ना वो कार्ब बेस्ड डाइट है। जब भी हम वीगन होने का सोचते हैं तो हमारे कार्ब लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, प्रोटीन कभी भी नहीं बढ़ता है। तो कार्ब्स बढ़ने से हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल, जो इंसुलिन जो होता है जो कार्ब्स को डाइजेस्ट करता है वो हार्मोन, इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। जब भी इंसुलिन हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सर्कुलेट होता है तब हमारा वेट गेन होता है, राइट? तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में आयरन, विटामिन B12 होना ज़रूरी है, बहुत अच्छा, और प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत अच्छा आपको लेना पड़ेगा। और आपको कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम लोग सोचते हैं मैंने 1 गिलास दूध पी लिया, अगेन दैट इज अनफ फॉर मी, बट डू यू थिंक अगर 1 ग्लास ऑफ मिल्क हैज 250 mg ऑफ कैल्शियम, राइट? अगेन दैट इज नॉट इनफ। अगर आप 3 टेबल स्पून सिसमी सीड्स लेते हो, तिल के दाने, तिल जो होता है तिल के बीज, तो दैट विल गिव यू 350 mg ऑफ कैल्शियम विद यू। So that is not the only source of calcium dear, you have to expand your sources of calcium, और ये बहुत ज़रूरी है। और आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ है हाई फैट। हाई फैट मतलब बैड फैट नहीं बोला मैंने, बटर नहीं बोला, मार्गरीन, मेयोनीज ये सब नहीं बोला। फैट कैन बी गुड ऑल्सो। फैट मतलब कि जो आपका गुड फैट सोर्सेज होते हैं जिससे आपके सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। सेक्स हार्मोन्स मतलब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे जितने हार्मोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ गुड फैट। तो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो योर हार्मोन्स कैन नेवर बी इन ऑप्टिमम पोजीशन, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगी। जब भी हम वेट लूज करने का सोचते हैं ना तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं मम्मी मेरी रोटी में आपके घी नहीं लगाना, घी को हटाओ मुझसे दूर। अगेन दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो जितने जो आप गुड फैट के सोर्सेज अगर आप अपनी प्लेट में डालेंगे यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स, बट ऑफ कोर्स इन मॉडरेशन। आपने ये नहीं कि पूरा बहुत ज़्यादा घी में तल दिया अपनी पराठा, ऐसा नहीं करना, बट यू हैव टू हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन, राइट? तो आपने ये चीज़ें बहुत ध्यान करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेट का ध्यान करो। हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन। छोटी प्लेट लो, बड़ी प्लेट मत लो। कुछ मैं टिप्स बता सकती हूँ आपको कि जब भी आप शॉपिंग करते हो आपकी क्रेविंग्स होती हैं। हाँ यस, क्रेविंग इज़ वन बिग क्वेश्चन पीपल कम टू मी विद कि हमें बहुत स्वीट क्रेविंग्स होती है। अगेन स्वीट क्रेविंग्स आर अ बिग सिग्नल, राइट? कि मैम मुझे बार बार मीठा खाने का मन करता है। अब देखो अगर आपके सेल्स आर स्टार्विंग, इफ़ योर सेल्स आर स्टार्विंग, जो हम खाना खाते हैं दैट इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी, राइट? अगर वो एनर्जी हमारे सेल्स के अंदर नहीं जाएगी तो इसका मतलब सेल्स के अंदर तो पहुंची ही नहीं, एनर्जी तो बनी नहीं। तभी हम कई बार खाना खाने के बावजूद हमें बड़ी थकावट होती है। और क्या होता है, वो एनर्जी जाके कहाँ है, फैट में कन्वर्ट हो गई। फैट में कभी इधर, कभी वेस्ट, कभी थाइस, कभी हिप्स, वहाँ जा करके कन्वर्ट इनटू फैट। दैट इज हाउ योर वेट गेन हैपन्स। तो आपने हमेशा ये ध्यान करना है कि आप जो खा रहे हो उसके बाद आपको फील कैसा हो रहा है। आर यू फीलिंग ब्लोटेड? अगेन ब्लोटिंग हो रही है
तो आपका वो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी हो रही है, अगेन देयर इज अ रीजन फॉर समथिंग लाइक गट बैक्टीरिया हो सकता है, या एसिडिटी, आप में एसिड उल्टा कम बन रहा है, राइट। तो बहुत सारे इसके सिग्नल्स होते हैं कि क्यों ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। और आपको एक अच्छी डाइट, एक बैलेंस डाइट, हो सकता है आपको वो चीज़ें लग रही हो कि मैं तो बहुत अच्छी डाइट ले रही हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी डाइट ले रही हूँ, स्टिल योर वेट गेन इज देयर, तो दैट मीन्स अगेन मे बी यू आर नॉट हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस कि दिस फूड जो आपने सोचा था कि वो मेरे लिए हेल्दी है, मगर अगेन ये हेल्दी नहीं है। तो वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। एक दूसरा ये बात मैं बताना चाहूँगी मार्केटिंग गिमिक्स के बारे में। जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले हम अब सोचते हैं कि वी हैव टू डू डाइटिंग दिस टाइम, और हमें से 5 पाउंड्स लूज़ करने हैं। हम लोग सोचते हैं कि लेट्स गो फॉर वेरी हेल्दी ऑप्शंस। हम लोग देखते हैं फैट फ्री, जिसके लेवल पे फैट फ्री, जिसके लेवल पे शुगर फ्री ऑप्शंस हैं, जिसके लेवल पे से एनीथिंग कोलेस्ट्रॉल फ्री, हम लोग वो चीज़ें देखते हैं। तो मगर आपने कभी सोचा है कि अगर वो लोग ऐसी चीज़ें लिखेंगे नहीं तो आप खरीदेंगे क्यों? और आप ये सोचो कि आपके फ्रिज में जनरली अगर किसी भी बहुत हाईली ओबीज पर्सन, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, आप उनकी फ्रिज में खोल के देखो, न्यूट्रलाइट बटर, डाइट फ्री कोक, उन लोगों के फ्रिजेस में ज़्यादा पाया जाता है जो ऑलरेडी बहुत ओबीज है, राइट। बट वाई नॉट जनरल पीपल? क्यों? उनको पता है कि मैंने अगर एक छोटी सी चीज़ लेनी है, मैंने लिमिट में लेना है। अगर मेरा मन कर रहा है मैंने एक बिस्किट खाना है, मैंने एक छोटा सा बिस्किट लेना है, एंड आई विल स्टॉप देयर, राइट। और जो ओबीज लोग होते हैं उन लोग को हॉर्मोन्स, उनके हॉर्मोन्स काम नहीं करते हैं कि विच आर टेलिंग पीपल कि नाउ योर स्टमक इज फुल। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स, राइट। अगर वो कनेक्शन ही ब्रेक हो गया ड्यू टू योर बैड लाइफस्टाइल, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से वो कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो आप लोग को नहीं पता चलेगा व्हेन योर स्टमक इज फुल, यू विल कीप ओवर ईटिंग। खासकर तब जब आपके हाथ में टीवी है, सामने टीवी रखा हुआ है, सामने फोन है, आप कुछ देखते, कुछ गप्पे मारते करते, बातें करते करते आप खाना खा रहे हो, यू नेवर नो कि आपने कब ओवर ईटिंग कर ली। आप किसी के घर डिनर पे गए हो, उन्होंने आपको बोला एक बाइट ले लेना प्लीज, एक बाइट ले ले, एंड व्हाट यू डू इज ओके गिव मी 1 बाइट, यू न्यू दैट योर स्टमक वाज फुल, अगेन व्हाट यू डिड वाज मैंने वो बाइट ली, ओके चलो अब तो खा ही सकते, फिर आपने क्या करा, पूरा का पूरा इतना बिग बाउल खा लिया। दिस इज व्हाट हैपेंस, यू अग्री विद मी, राइट। मगर ये ध्यान करना जरूरी है कि आपने वो बाउल खा लिया, अगर आपने वो बाइट ना ली होती तो दैट वुड नॉट हैव हैपेंड। आप अपने घर में बच्चों के भी छोटा छोटा, कभी किसी की आधी रोटी रह गई, किसी के 2 चम्मच चावल रह गए, किसी का कुछ, आप उसको भी खत्म करते हो। यू विल सी दैट इफ यू स्टॉप डूइंग दिस प्रैक्टिस कि किसी का एक्स्ट्रा बचा हुआ आपने खाया, उससे आपका भी 3 to 4 kgs डाउन जा सकता है वेट। डू यू नो दैट? ओवर ईटिंग की हद समझनी बहुत ज़रूरी है। सीरियसली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी आना पड़ेगा कि हमें कब रुकना है। हर चीज़ में देयर शुड बी अ लिमिट, वेदर इट्स योर डाइट, वेदर इट्स योर इमोशनल पैटर्न्स। आपको ये बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी अपने लिए कि व्हेन यू शुड से नो। इफ इट्स एन इमोशनल इशू देन ऑल्सो यू शुड नो कि आप मैंने यहाँ पे ना बोलना है। इफ इट्स योर डाइट, इफ इट्स योर प्लेट, देन ऑल्सो यू शुड नो कि मुझे यहाँ पे ना बोलना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब तक आप ना बोलना नहीं सीखोगे, your life will not get on track. You have to understand this thing. और आपने अपनी बॉडी में, आपने जब भी कुछ चूज करना है, ट्राई टू पुट योर प्लेट कि मैंने अपना खुद ख्याल रखना है। कोई आके सॉरी टू से पानी भी नहीं पिलाएगा जब हम बीमार हो जाएंगे, तो इंक्लूडिंग मी। अगर मैं आज की डेट में एक कॉमनवेल्थ एथलीट हूँ, आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट दिस टाइम, दिस इज जस्ट बिकॉज माई जर्नी स्टार्टेड लॉन्ग बैक से 2010 when I had चिकनगुनिया। दो माई फैमिली सपोर्टेड मी वेरी वेल, मगर आपकी जब तक हेल्थ अच्छी ना हो ना, तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता, राइट। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आपके पास जितना मर्जी नौकर हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब तक आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करे ना, यू विल नॉट फील गुड अबाउट एनीथिंग, राइट। और आप ये समझने की कोशिश करो, सारे आसपास थे मगर आई एम नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम माई बेड। आई यूज टू टेक 15 minutes टू गेट अप फ्रॉम माई बेड। मेरा एक इट वॉज कम्प्लीटली मसल डिस्ट्रॉफी वाला था। आज से 10 साल पहले जो है ये चिकनगुनिया को कोई इलाज नहीं था। इट टुक मी 6 months टू गेट फ्रॉम माई बेड, कैन यू इमेजिन दैट। और उस टाइम, उस हालत में
मतलब आज मैं, आप समझ लो, कॉमनवेल्थ एथलीट हूँ, हैवी लिफ्ट करे, उस हालत में मैं घर में डीवीडी ला करके अपने आप को सही करने की कोशिश करती थी वर्कआउट प्रोग्राम्स करके, कि किसी तरीके से मैं वार्म अप सीख लूँ। जिस दिन मैंने 15 मिनट का पहला वार्म अप करा, आई वॉज लिटरली डाइंग इन एंड आई वॉज इन टीयर्स। कैन यू इमेजिन दैट? कि उस टाइम मतलब मैं, आई फेल्ट लाइक अ 70-year-old वुमेन। आई फेल्ट लाइक अ 70-year-old वुमेन कि मुझे मतलब ये कैसे हो गया। तो उस दिन मैंने, आई टुक अ प्लेज दैट आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई बॉडी। ठीक है, सबने अच्छे से हेल्प करी, सब कुछ करा, बट द थिंग इज दैट इफ योर बॉडी इज नॉट गुड ना, यू विल नॉट एंजॉय योर लाइफ। दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। तो उस दिन मैंने वहाँ पे अपना घर में पहले वर्कआउट शुरू करा। धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करते करते इट्स बीन से, मतलब उस टाइम वो हालत थी कि मेरे से 1 किलो का डंबल नहीं उठाया जाता था। धीरे धीरे 2 किलो का मैंने डंबल मैंने शुरू करा। आई थॉट कि हाँ ये 2 किलो का है, मैं पता नहीं कर भी पाऊंगी कि नहीं। वो टाइम भी था, कोई टाइम था कि 1 kg का डंबल उठाते उठाते आई वॉज थिंकिंग ट्वाइस कि मैं जा तो रही हूँ मार्केट, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू पिक अप दैट डंबल। तो बट फिर भी मैंने कोशिश करी। माई मसल्स वर एकिंग, माई नॉट इवन अ सिंगल जॉइंट वॉज देयर विच वॉज नॉट एकिंग एट दैट टाइम। दैट वॉज माई विल पावर एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेड मी सो स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते आई स्टार्टेड लिफ्टिंग, आई वेंट टू द जिम। फिर उसके बाद मेरे जो ट्रेनर्स थे उन्होंने सीरियसली मुझे बोला कि पूनम यू शुड बी, यू आर लिफ्टिंग सो गुड, व्हाई डोंट यू ट्राई प्रोफेशनली। देन ऑल्सो आई स्टार्टेड, आई डेंट बिलीव इन माई सेल्फ। नहीं सर क्या बात कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग मेरे बस का नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो फिर बाई चांस ऐसे टाइम धीरे धीरे निकलता गया। आई डिड माई प्रोफेशनल कोर्सेज एज वेल। और फिर हाँ प्रोफेशनल हाँ, मैं पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, वो मैं कर लूँगी, बट पावर लिफ्टिंग कोई किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर मी। फिर उसके बाद मैं RDX जिम में गई एज अ डाइटिशियन एंड देयर वर सो मेनी आइडल्स there and I found a big team of powerlifting there. My God, मतलब वहाँ जाकर के powerlifting की टीम, और वहाँ पे नीरज चावला सर थे वहाँ पे। मतलब उन्होंने कहा कि पूनम जी यू शुड ट्राई, इस बार मैं आपका नाम लिखवा रहा हूँ। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, आई वोंट बी एबल टू गो एंड पार्टिसिपेट इन दिल्ली स्टेट। तो वहाँ पे सिर्फ सर के कहने पर मैं गई और वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली स्टेट का 2 गोल्ड मेडल्स आई वन। आई रिमेंबर दैट। और दैट वॉज अ पॉइंट आई डेंट लुक बैक। आई वेंट ऑन competing नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल। लास्ट टाइम ऑल्सो, लास्ट ईयर इन सेप्टेम्बर आई वेंट टू सेंट जॉन्स एंड न्यूफाउंडलैंड कैनेडा। आई वन 1 silver and 1 bronze medal for India. That was a huge moment for me. मतलब अगर मैं कर सकती हूँ, 10 साल का टाइम ज़रूर लगा मुझे। फिर डाइटिशियन तो मैं थी पहले ही, तो ये सारी चीज़ें होते 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 मतलब यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। जस्ट वाई, बिकॉज ऑफ माई शेयर विल पावर। वाई कांट यू डू दैट? द थिंग इज दैट आई जस्ट लव्ड माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट यू टू लव योर सेल्फ टू। और अंजू मैम जिसकी मेंटोर हो, आई डोंट थिंक देर इज़ अ सिंगल वुमेन शी विल लीव कि वो अपने आप को प्यार ना करे। दिस इज़ अ बिगेस्ट क्वालिटी इन अंजू मैम कि वो उन्होंने एक ऐसा निश बना दिया है जो शी कनेक्ट्स में। आई एम सो प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, कि मुझे अच्छा लगता है, चाहे मैं कमेंट कम करती हूँ, चाहे मैं पोस्ट कम करती हूँ ग्रुप में, बट आई रीड ईच एंड एवरी पोस्ट ऑफ योर्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप जितने काम कर रहे हो, कितना अच्छा लगता है, अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज आई वॉन्ट टू सी द वुमेन इन इंडिया। मतलब एवरीथिंग यू कैन डू, वट एवर यू डिसाइड। आपका सिर्फ सुनने का, सोचने की देर है। यू कैन रीच हाइट्स एंड यू शुड डू दैट। और यस, और बस अपना ख्याल रखिए। और मैं चाहूँगी कि बस अपना थोड़े थोड़े हेल्थ के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आई वॉन्ट कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है वेयर आई कैन हेल्प यू मच, प्लीज़ डू कम टू मी। यस, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, दो इट इज़ डाउन फॉर सम रीजन्स। थोड़ा सा हम वर्कआउट कर रहे हैं उसके कंटेंट पे। इट विल बी अप इन फ्यू डेज। और आई वॉन्ट कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें। सबसे पहले 4 पॉइंट्स आई वॉन्ट टू गिव यू इन ब्रीफ कि अपना शुगर लेवल्स मेंटेन करना है, स्ट्रेस लेवल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने अपने, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। यू विल कीप 1 hour 2 hours फॉर योर सेल्फ। यू विल गिव सम टाइम फॉर योर हॉबी फर्स्ट ऑफ ऑल। सारी दुनिया एक तरफ, पहले अपना ध्यान रखो। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से। बॉटम लाइन मेरी यही है कि अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो आप सारी दुनिया को जीत पाओगे। यू विल प्रूव योर सेल्फ। जो लोग आपको कम समझते हैं ना कि शी इज़ अ वुमेन, शी कैन नॉट डू दिस, लेट्स पुट हर डाउन।
कई बार विमेन भी होती हैं ऐसी कि लेट्स पुट हर डाउन, और लोग उस औरत से डरते हैं। ये बात याद रखना, लोग उस औरत से डरते हैं जिससे उनको लगता है कि शी विल बिकम पावरफुल इन द लॉन्ग रन. Those people will surround you. Never listen to outside voices. Listen to your soul. Listen to your heart. What your heart is saying, that is the truth. Everything is a lie. ये डाइटिशियन मैं ज़रूर हूँ. आई एम अ लाइफ कोच ऑल्सो, बट आई वॉन्ट टू एम्पावर ऑल वुमेन. मुझे आज बहुत टाइम बाद 1 घंटा मिला. मैं इतना बोलना चाह रही हूँ, मेरे पास इतना कुछ है बोलने को कि आई रियली वॉन्ट कि आप अपनी पावर को, अपनी डिवाइन फेमिनिन जो पावर है अंदर से, गॉडेस बैठी हुई है, ट्राई टू उसको बाहर निकालो और अपने आप को इतना एम्पावर फील करो कि नोबडी कैन डिफीट यू वंस यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. अपने प्रोफेशन को एक्सपर्टीज़ दो कि कोई भी आके ये ना कहे, या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अंजू मैम, कोई भी आपको आके ये ना कहे कि सो एंड सो, कोई भी आपका जो मतलब जो भी नाम है आपका, वो ये नहीं कर सकती है. आप सब कुछ कर सकते हो और बस आपको उनको प्रूव करके दिखाना है. आपने डिसाइड करा. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देना मैं चाहूँगी कि जैसे एक सीड होता है, पता है क्या होता है, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, दे गिव अस सम लेसन्स. नेवर थिंक कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है. सारी लेडीज ज़्यादातर ना ऐसे होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि वाई मी, वाई ऑल दिस इज हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ये. नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. जो गॉड्स ने भी अगर इनकारनेशन लिया होगा ना अपने टाइम में, इनकारनेशन लिया है अपने टाइम में, तो उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं. और आप भी एक इंसान के रूप में अगर कुछ आए हो ना, अगर आपने धरती पे जन्म लिया है, तो इसका मतलब यू हैव कम हेयर टू लर्न सम काइंड ऑफ लेसन्स. थिंक यू आर अ सीड. किसी ने अगर आपको डार्कनेस में अगर वो करे ना, कहते हैं मिट्टी में गाड़ा है, दे थिंक दैट दिस सीड इज गोइंग टू डाई, बहुत डार्कनेस है. थिंक यू आर अ सीड. जैसे एक सीड कुछ भी नहीं सोचता, ना लेफ्ट ना राइट, उसको सिर्फ ऊपर जाने का होता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि आई जस्ट ग्रो आउट ऑफ द सॉइल. कैन यू रिलेट दिस? थिंक यू आर अ सीड, कि आप सॉइल में से बाहर निकलोगे. बाहर निकलो, ग्रो योर सेल्फ. और अपने आप को सीड के जैसे, ये मत सोचो कि आप मर जाओगे अंदर मिट्टी के. नहीं, यू आर अ सीड, यू विल ब्लॉसम व्हेन योर टाइम कम्स. मे बी कई बार हम अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हैं कि सामने वाला के तो इतनी जल्दी, उसने 2 साल में इतना पा लिया, इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे 10 साल हो गए, मेरे साथ रिजल्ट्स नहीं आ रहे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. मे बी यू आर स्प्रेडिंग योर रूट्स. यू आर स्प्रेडिंग योर रूट्स. जैसे देखो घास होती है ना, घास, पता नहीं मैं बहुत ऑफ टॉपिक भी जा रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू स्पीक सो मच. घास होती है, उसको देखोगे थोड़ा सा भी आप कहीं पे रूट को कहीं पे लगाओगे तो इट विल स्प्रेड ऑल ओवर द एरिया. कैन यू बिलीव? घास को उगने में टाइम नहीं लगता, मगर जब आप बैम्बू का ट्री देखते हो या बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, कोई आम का ट्री होगा या कोई फ्रूटफुल ट्री होता है, इट विल टेक ईयर्स टू ग्रो. क्यों? क्योंकि क्या होता है, उसको टाइम लग रहा है अपनी रूट्स फैलाने में, पहले अपना बेस, पहले अपनी फाउंडेशन बड़ी करने में. इनर जर्नी होती है उसकी. अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जब उसका टाइम आता है तो एकदम से ब्लूम करते हैं. पीपल आर लाइक दैट. इट इज़ वेरी यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव अप्रोच कि अगर आपको आज कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? मिलेगा, 110% मिलेगा, टिल द टाइम यू आर नॉट डिफीटेड इनसाइड. You have to be a conqueror first inside, then only you will conquer the world outside. It is very important. और ये सब हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि स्ट्रेस किल्स इनसाइड. जब आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हो, तब आप अपने आप को अंदर से बदलना शुरू कर देते हो. द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. थैंक गॉड. आप ये देखो, किसी की अगर आंखें नहीं है, वो आईज का ऑपरेशन कोई डोनर ढूंढेगा, कितने लाखों रुपए लग जाते हैं. किसी के हैंड्स नहीं है, किसी के रिस्ट काम नहीं करी, किसी के फिंगर्स. मेरे पास तो हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं. यू शुड बी सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि थैंक गॉड, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बॉडी दी है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास हाथ है, मेरे पास पैर है, मेरी आईज आर वर्किंग गुड, मेरे लिवर. प्लीज स्टार्ट दिस ग्रैटिट्यूड की अपने आप को आदत डालो. थिंक पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ. कि क्यों सोचते हो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है. अरे लोग कल पता नहीं उठेंगे कि नहीं.
पता नहीं, उनको ये नहीं पता कि मैं सुबह, जो लोग आज की डेट में हॉस्पिटल में बेड्स पे पड़े हुए हैं, उनसे जाके पूछो कि उनके लिए एक एक मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग कितनी अच्छी जगह बैठे हुए हैं कि हम अपने घरों में, आज की डेट में जो पेंडेमिक का टाइम है, हम लोग अपने घरों में बैठे हुए सुख शांति से, खाने को है, पानी भी है, सोने को है, हर चीज़ है। हम लोग क्यों नेगेटिव सोचते हैं? टाइम विल पास, स्टॉर्म्स विल पास फॉर श्योर, मगर अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थैंक यू, आपने मेरे लिए, मुझे इतनी पेशेंटली मुझे सुना। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और अंजू मैम, थैंक यू, लव यू सो मच। और बहुत अच्छा ग्रुप है ये। अपने आप को खुश रखो और हमेशा पॉजिटिव रहो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट मी। अभी आप कितना, लेट मी सी द टाइम, स्टिल 5-10 minutes are there. If you have any kind of questions you can post me, I'll be able to answer. Please post your questions if you have. Thank you Simi ji, thank you so much. Timsi, thank you. Josna, Tamanna, thank you so much. Yes Kavita, thank you so much. Jaswinder ji, thank you. And I really like कि आप लोगों को मेरी कुछ विचार जो आपने मेरे सुने इतनी देर से, आपको अच्छा लगा। एंड आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर मैं आप में से किसी एक को भी थोड़ा सा चेंज कर पाऊँ, क्योंकि इस टाइम हमारे लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टाइम, अगर हम अपने आप को नहीं संभाल पाए ना, इनर फियर, हम लोग अपने आप को बिल्कुल देखो, इनर फियर्स किस बात के हैं मुझे बताओ। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपने एक ऑर्डर दिया, मुझे सपोज कुछ भी नहीं देंगे, चाउमीन मुझे खानी है या मुझे डोसा खाना है, तो डू यू गो आफ्टर द वेटर टू द किचन टू सी इफ दैट पर्सन इज कुकिंग फॉर यू और नॉट? थैंक यू शर्मिंदर जी। आप क्या उसकी, मतलब आपको एक अंदर से पता है ना कि हाँ, मैंने अगर एक ऑर्डर दे दिया है तो वो आ जाएगा। आपको किस चीज़ का डर है? आपको एक ये फियर को ना अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। एक आपको, या तो आपको गॉड पे ट्रस्ट नहीं है कि दैट गॉड इज़ नॉट विद इन यू, और वो आपकी जो ख्वाहिशें हैं जो वो सब पूरा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर आपका मन सच्चा है, अगर आप अंदर से ग्रैटिट्यूड फील करते हो, यू आर नॉट कंप्लेनिंग थ्रू आउट योर लाइफ, दैट देन गॉड विल डेफिनेटली लिसन। कई बार क्या होता है, गॉड आपका टेस्ट लेता है फेथ का, कि हाँ, अगर ये मुझसे कुछ मांग रहा है तो ये काबिल है क्या नहीं, इसका कितना फेथ है, इसका कितना ट्रस्ट है मुझ पे। तो वो आपको चेक कर रहा है। यू हैव टू, कई बार हम कहते हैं कि मुझे चीज़ मिले तो मैं फेथ बढ़ाऊं। वाई? आपको पहले ट्रस्ट करना होगा, तब वो चीज़ मिलेगी। अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और जसविंदर जी, डाइट फॉर पीसीएस आई वुड रिकमेंड कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ने हैं। बहुत अलग अलग, मुझे पहले हार्मोनल प्रोफाइल देखना पड़ता है, मैं ब्लड टेस्ट पहले देखती हूँ कि आपका इस टाइम हार्मोनल प्रोफाइल क्या है। जनरली मैं जनरलाइज डाइट नहीं दे पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी, बट कुछ फूड्स ऐसे ट्रिगर होते हैं जो करते हैं ट्रिगर आपकी। देखो, एक चीज़ सिर्फ फूड्स इज़ अ बिग फैक्टर ऑफ दिस पीसीओएस, प्लस आपका स्ट्रेस, प्लस आपका कितना स्लीप है, प्लस आपकी लाइफस्टाइल कैसी, कितना वर्कआउट करते हो, आप किस तरह की डाइट ले रहे हो। आप अगर डाइट आपकी, मैं आपको कुछ बताऊं, और आप कई बार क्या होता है, हम लोग जिम्स जा रहे होते हैं, मगर हम 1 घंटा वहाँ पे जिम करेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, घर आकर के हम लोग ऊट पटांग चीज़ें खाने लग जाएंगे। इट कैन बी छोले भटूरे, कोई बात नहीं, एक छोले भटूरे से क्या होता है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान करनी है। मल्टीपल फैक्टर्स गिव यू गुड रिजल्ट्स। फेशियल हेयर हो जाते हैं, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, मगर आपको ये ध्यान करना बहुत ज़रूरी है कि पीसीओएस में, पीसीओएस सिर्फ किस चीज़ का, मुझे अल्ट्रासाउंड देखना होता है। इट कैन बी, अगर आपका सिस्ट्स हैं, इट कैन बी फाइब्रॉइड्स, इट कैन बी एंडोमेट्रियोसिस, इट कैन बी योर पेनफुल पीरियड्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पेनफुल पीरियड्स हों, दैट इज़ अगेन नॉट नॉर्मल फॉर यू। प्लीज़ अपना ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जब पीरियड्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के, आपके जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। और जब आपको पीसीओएस जैसे कुछ जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है बॉडी, तो उस टाइम आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो जब आप शुगर को कंट्रोल करते हैं, उस टाइम शुगर की प्रोडक्ट, शुगर का अमाउंट अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो भी आपका पेन बढ़ता है। अगर आपने शुगर अपना कंट्रोल करा और अगर आपने हेल्दी स्नैकिंग करी, ठीक है,
तो इन चीज़ों से पेन पर भी फ़र्क पड़ता है। कईयों को क्रैम्प्स होते हैं लेग्स में, काव्स में, तो उस टाइम भी आपने ये ध्यान करना है कि आपने लेग्स और काव्स, अगर आपका कैल्शियम लेवल जो है बहुत डाउन है बॉडी का, खासकर विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है PCOS में। अगर ये चीज़ें मेंटेन की जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें, टाइम से सोना, टाइम से उठना, और आपके स्ट्रेस, आपका वर्कआउट, आपकी डाइट, और बाहर से आप कितना शुगर लेवल ले रहे हो। अगेन प्रोसेस्ड फूड जो है बिल्कुल बंद करना पड़ता है क्योंकि इट इज़ हाईली ट्रिगरिंग फॉर PCOS पीपल। और प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला आपको जितना फर्मेंटेड फूड खाओगे आपके लिए अच्छा है। से डोसा खाना है, इडलीज खानी है, आपने क्या करा, आप MTR का पैकेट लेके आते हैं और उससे फटाफट घोला पानी में और आपने बना दिया। अगेन दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि जो भी पैकेज फूड है, पैकेज फूड में बहुत हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ उसमें टेक्सचर एनहांसिंग चीज़ें मिली होती हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें कलरिंग यूज़ होती है, और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये कलरिंग जो होती है, इवन कलरिंग भी आपकी बॉडी को बहुत ट्रिगर करती है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस करने में। तो एंग्जाइटी वगैरह हो जाती है। आप अभी भी ये देखो न्यूज़ चल रही है, अभी दिल्ली में इतने हैं, अभी इतने ठीक हो गए, इतने फर्टेलिटी ये है, मोर्टेलिटी है। तो हम लोग अगर हर समय न्यूज़ के सामने बैठे रहते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने आप को पीसफुल रखना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया। प्लीज़ ऑल ऑफ यू अपनी मीडिया से दूर रहो, जितना अपने आप को पीसफुल, अपने आप को कहीं बिजी रखने की कोशिश करो कि अपने लिए टाइम हमने डाइवर्ट करना है। तो दैट विल रियली हेल्प यू मेंटेन योर हार्मोनल बैलेंस ऑल्सो। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए अपना एंग्जाइटी से बचिए। किसी तरह का अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इशू है जिस चीज़ का हल नहीं निकल पा रहा, तो उसको पहले सॉर्ट आउट करो। सॉर्ट आउट करना है, तब उस चीज़ का जब हल निकलेगा, यू विल सी लॉट ऑफ फिजिकल पेन्स गोइंग अवे फ्रॉम योर बॉडी। यू विल सी फॉर योर सेल्फ, फिजिकल पेन्स भी दूर होते हैं। आपकी पर्सनल इश्यूज अगर कुछ है, इट कैन बी रिलेशनशिप इश्यूज, शर्म नहीं है बोलने में, सबके साथ है। कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कुछ बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, कुछ इन लॉज से रिलेटेड हो सकता है, कुछ जॉब से रिलेटेड हो सकता है, इट कैन बी एनी स्ट्रेस। तो ये ध्यान करना बहुत ज़रूरी है आपको कि आपने पहले अपना सॉर्ट आउट करना है, अपने लिए भी जीना है। यू आर अ प्रीशियस सोल। आप सिर्फ लोगों के लिए घर संवारने के लिए नहीं हो इस धरती पर, आपने अपना भी ध्यान करना है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप you really liked my session. I think it's time. And if you have any question, you can also visit my website, see a lot of testimonials, and visit me. I am based in Vikaspuri also, and if it is not possible for you to visit me, then you can have an online session with me, and of course we'll have a cup of tea together, and I'll try to give you a good diet counseling. एंड जो भी मेरे पैकेजेस हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करके बताते हैं. आई वांट सम गुड ब्लड टेस्ट ऑल्सो, और इफ़ यू हैव रीसेंट ब्लड टेस्ट से 1 month 1 or 2 months old, देन ऑल्सो दे विल बी गुड एनफ फॉर अस. और अगर आपको लगता है आप यू कैन ऑल्सो विजिट माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ न्यूट्रीफाई बाय पूनम के नाम से ये यूट्यूब चैनल. यू कैन ऑल्सो लाइक माई इंस्टाग्राम पेज, या एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एज वेल. और अगर आपको कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, देन यू हैव माई नंबर्स. मैम के पास भी है, ऑल्सो वेबसाइट ऑल्सो हैज़ माई नंबर्स, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और व्हाट्सएप मी. एनीथिंग एल्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. Thank you. You found my session very informative, Shifali. Even I thoroughly enjoyed the session talking to you all. So we deal in lot of diet issues, जो health issues है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल issues हो सकते हैं, और गट issues होते हैं. इम्यूनिटी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो क्या इम्यूनिटी की डाइट है. और PCOS PCOD आई टोल्ड यू ऑलरेडी. कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हार्ट केयर है, सीनियर हेल्थ केयर वी ऑल्सो टेक केयर. और बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब मेरे पास 65-70 ईयर्स के भी एजड विमेन आती हैं. मुझे एक टेस्टिमोनियल एक याद आ रहा है, मैम ने, मतलब शी वॉज सो हैप्पी.
और वो आई थी दैट टाइम शी ब्रॉट हर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स और एवरीथिंग वाज क्यूट. उस टाइम उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई थे, डायबिटीज़ भी थी और उनका जॉइंट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे. मतलब वो कहती थी कि मैं चढ़ नहीं सकती, सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़ सकती, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है. और उसके बावजूद शी वॉज इन टीयर्स. इतना एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन. उनके घर में कुछ मतलब आई थिंक कुछ डॉटर इन लॉ के साथ इश्यूज थी, कुछ मतलब जैसे सबके घरों में चलता है तो उस तरह की इश्यूज थी. और बहुत ज़्यादा बैड फेस से वो गुजर रही थी उस टाइम कि बस मुझे अपने लाइक कर दे. दीज वर हर लिटरल वर्ड्स कि मुझे पूनम अपने लाइक कर दे किसी भी तरीके से. तो आई सेड कि मैं बिल्कुल आप मतलब चिंता मत करो, यू आर एट द राइट हैंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ यू. एंड विद इन 3 months कैन यू बिलीव व्हेन आई गॉट हर ब्लड टेस्ट अगेन डन. और उस टाइम उनका 9 to 10 kgs in 3 months she lost despite her age 65 to 70 years की एज में. वो कहते पूनम मैं पहली बार गुरुद्वारे गई हूँ एंड आई सैट ऑन द फ्लोर. और वो कहती कि मेरे से तो पैदल नहीं चढ़ा जाता और मेरे से तो घुटने नहीं मुड़ते. दीज वर आर वर्ड्स कि घुटने नहीं मुड़ते और मैं बैठी हूँ नीचे, मैं लिटरली मुझे पता नहीं चला मैं कैसे बैठ गई. एंड माई हस्बैंड सेड अरे गुरनीते तू तो नीचे बैठी, मुझे पंजाबी नहीं आती बोलनी, सॉरी, कि नीचे बैठी हुई है. एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि भाई मैं नीचे बैठी हुई हूँ. मतलब दीज थिंग्स कैन बी डन विद अ डाइट. व्हेन यू हैव अ गुड डाइट आपकी ल्यूब्रिकेशन अच्छी हो जाती है. आपका मूड इश्यूज जो थे, इतना डिप्रेशन एंग्जाइटी स्पेशली उसी के लिए आई थी. कहती मेरा सारा ठीक हो गया, आई एम सो पीसफुल, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, अब मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ. शी वॉज सो इंडिपेंडेंट, शी कुड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. और खासकर जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आई, ऑल हर पैरामीटर्स वर परफेक्ट. और बहुत अच्छा लगा, मुझे भी जान के अच्छा लगा कि लोगों को मतलब एटलीस्ट आई कैन गिव अ स्माइल टू पीपल. This is the beauty of my profession. And if you want to bring a good change in your life, if you want to add quality to your life, though inch loss is just a bonus, please do come to me. You can have my number, that is 98919 06287. Thank you for having me, Anju ma'am. Love you all. Thank you so much.